Hello. Welcome, guys. Welcome to my channel Couch Potato. I am your host Mayank Anand, and today we are gonna review the show which was in like a lot of hype recently called The Boys. Season 2 came out in 2020 September, and to review it today, I have with me a very special friend, Ritvik Raj Singh. हेलो ऋत्विक। people। कैसा चल रहा है? बस बढ़िया यार, वही रेगुलर क्वारंटीन डेज स्पेशल जो कुछ नहीं होता। एंड तो सीज़न 1 आया था 2018 में। हम लोग थे कॉलेज में, आई थिंक थर्ड ईयर में पहुँचे ही थे हम लोग, 5th सेमेस्टर था, राइट? एंड द बॉयज़ निकला एंड वी वर लाइक प्राइम पे ऐसे ही गया मैं, एंड आई वाज लाइक ब्रो, क्या तूने द बॉयज़ देखा है? एपिसोड 1 ख़त्म करते ही एंड यू वर अरे लाइक it was 2019 जीनियस। ब्रो नहीं, इट वाज एन 18। 19 चेक कर। एक मिनट, अभी चेक करते हैं। हम लोग का वैसे भी कॉलेज टाइम थोड़ा सा अरे हाँ timeline थोड़ा क्लाउडी हो चुका है 2018 और 19, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अच्छा टाइम था। हाँ भाई। तो या 2019 में निकला था पिछले साल, एंड इतना अच्छा था कि हम पगला गए थे। लाइक हमें इसके बारे में पता कैसे नहीं चला रिलीज होने के पहले। वी वर लाइक दैट, राइट? So within 10 minutes we were like एग्जैक्ट। ये तो बिंज होने वाला है। जब रॉबिन के चिथड़े उड़ जाते हैं, क्वाइट लिटरली भाई। तो तो उसके बाद क्या हुआ कि सीज़न 2 आया 2020 में, राइट? सीज़न 1 ended at a very great note. सीज़न 2 आया, सीज़न 2 में we saw some great character developments, right? It was crazy, like the whole shift from, we'll talk about that later. So, Yep. तो या सो आई वाज सेइंग, कैरेक्टर्स को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। स्टोरी लाइन को लेकर उतना नहीं करेंगे, बिकॉज स्टोरी लाइन वाज pretty similar to what we see in superhero series and all, except for the fact that characters बहुत अलग थे, and उसके वजह से जो development थी stories में, I think those were very different, right? Well, it started as a proper villain and superhero series, remember? yeah. Maeve killing villains, like and it's like Suicide Squad only, like only but more elaborate. yes, and the difference I think between Marvel, DC/DC and The Boys was that जब तुम 5-10 साल के होते हो, when you're 5-10 years old and when you're watching superhero stuff, you want something like Marvel or DC, जिसमें superheroes are superheroes, okay, and villains are villains, right? Like there's a proper categorization, and then धीरे धीरे as you and धीरे धीरे as you know go towards adulting, you find that yes, there is something called anti-heroes, right? Yep. And then when you get into college, your life turns into something called The Boys. हाँ नहीं, कॉलेज में जाने के बाद there's nothing good or nothing bad, like ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ब्लैक एंड वाइट का बहुत कॉन्सेप्ट जो अच्छा बोलते थे, Exactly, you reach that gray वाला phase. Exactly. You actually start to see the life. यस। So yeah. तो मेरे ख्याल से what The Boys did is it totally eliminated the concept of black and white, like white मतलब सिर्फ good deeds, Very good. yes, Very good, yeah. and black Captain मतलब America. सिर्फ bad deeds, you know, the Joker, or we can say someone as crazy in Thanos. Marvel, and it totally eliminated that, and it gave a sort of to and fro to and fro motion to the characters, कि हाँ कभी कभार वाइट हो सकते हैं, कभी कभार ब्लैक हो सकते हैं, एंड ओवरऑल ईच एंड एवरी कैरेक्टर दैट वी सी इज ग्रे, you know, including Huey, because there are places where Huey भी weapons उठा लेता है, and he goes for the ruthless way rather than just talking it out and stuff, right? The Invisible Man वाला। Yeah. Invisible कौन सा था जो भी था? Yep, Invisible Man. Invisible जो Man भी ही नाम था उसका। चल जो भी। Invisible Kunt. हाँ, कुंट। That's what we know. Exactly. तो let's compare Homelander and Billy Butcher, of course.
the leader of the Seven and the leader of the Boys. Mhm. What are the similarities and what are the differences between them? Tell me something, in that sense. I'll say similarities तो ये थी कि both had their own moments of childhood trauma, right? Hmm. They both had differences with their parents. Daddy issues. Homelander didn't even have parents. Exactly. और बुचर के केस में शायद उससे फादर की नहीं बनती थी उसकी और तो it's like he has been through a traumatic past. So that was very common between those two. That's true. So that is what made them so closed to any kind of positive emotions in their life, and they could not trust anyone, basically. They could not. They had their own desires, but they did not trust anyone. Okay. So yeah, that's all I can say right now. So don't worry about spoilers, right? Because सीजन हाँ, 1 को तो आए देख हुए लिया तो होगा। 20 सीजन 1 को आए हुए 20 लाइक एक साल हो चुका है. सीजन 2 को भी लाइक अक्टूबर 9 को लास्ट एपिसोड आया था, तो वी हैड लाइक 2 हफ्ते हो चुके हैं, राइट? तो या टॉक फ्रीली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड हाँ, तो जैसा तूने बोला कि बोथ हैड देयर मोमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे कि होमलैंडर हैड अ डैड फिगर हु वाज द डॉक्टर हिमसेल्फ, जो कि जिसके केयर टेकिंग में होमलैंडर था. एंड बिली बुचर had a dad who was very abusive, right? He used to beat up both the kids, as we know. In the, second season where we get to know when he has the conversation with his dad, and he gets to know that Billy gets to know that Billy's younger brother Lenny was always hated by his dad because he apparently he was too weak, right? Yeah, right. So I think that scene was something very patriarchal, right? I mean, when we talk about patriarchy, where men have to be strong characters, who can face anything, and they always have to be tough on the inside and on the outside, right? Of course, everybody should be tough on the inside to, be able to face any situation. But being tough on the outside is something which patriarchy asks for, right? Men should be always tough. They should never cry. Like, I remember Billy's dad saying that Lenny used to cry a lot when he used to beat up the kids, but Billy never cried. He always had a threshold for pain, and that's what made Billy Butcher what he was today, right? Right. So that is something I see. Which is not even very healthy, right? Very Exactly. healthy. It's not at all healthy because it's toxic for themselves and for the people around him. Exactly. Yes. And that's really bad कि एक डेफिनेशन बना दी जाती है किसी भी जेंडर की. मैं सिर्फ मेन की बात नहीं करूँगा. किसी भी जेंडर की एक डिफाइंड बाउंड्रीज रख दी जाती हैं. और एक्चुअली इंसान की आदत है, पता है, किसी भी चीज में एक बाउंड्री डालने की. ये That's है true. तो ये यही करेगा और इतने सेट ऑफ एक्शंस हैं इसके, इससे ज्यादा नहीं करेगा. अरे यार, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम थोड़ी ना है कि हाँ ठीक है ये कैरेक्टर सिर्फ इतना करने वाला है, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना करने वाला है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Exactly. You're human, you're limitless. पता Yeah. नहीं, उस हिसाब से लोग कभी समझते ही नहीं है. जेंडर रोल्स और इस सब के चक्कर में इतना पागल हो जाते हैं लोग कि दे क्रिएट अ वेरी टॉक्सिक सोसाइटी. सो ये चीज़ खराब हुई एक्चुअली. और ये चीज़ ह्यूई के साथ भी खराब हुई कि वो सॉफ्ट बन गया बहुत ही ज्यादा. और एक and his Billy dad Butcher के pointed साथ that खराब out हुई. too, that you're too soft to do anything. You don't have the spine to do Exactly. anything. एग्जैक्टली. Yes. तो फिर देख, स्पाइनलेस नहीं होना चाहिए इंसान को. सॉफ्ट हो जाओ, कोई बात नहीं है. लाइक बी काइंड टू पीपल, बट डोंट लेट देम पुश यू ओवर. समझ रहा है? मतलब वो भी एक चीज होती है. एंड एट द सेम टाइम बिली की तरह एकदम सख्त हो जाओ कि तुम्हें किसी चीज का असर ना पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम बी अ बिट इमोशनल एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स other people's Yes, that's true. emotions or feelings and everything. So you have to be balanced. जैसे जो कैरेक्टर है मदर स्मिथ, MM, that guy is like the perfect portrayal of a balanced man.
समझ रहा है? yes, I agree because मुझे वो परफेक्ट I think MM ऐसा बंदा था जो कि शो में तुम्हें बताता है राइट मोमेंट पे राइट डिसीजन क्या होना चाहिए, राइट? राइट, या Because Huey is too soft to take hard decisions. Billy is too hard to take the softer ways, you know, the easier ways. And Frenchie is someone who usually follows the lead. He doesn't have a lot of say, right? But I'll say Frenchie is sort of in the MM's category, sort of, because he is. Because पहले का जो उसका कैरेक्टर दिखाया था, the earlier days, he was a druggie, he was a weapons dealer and stuff like that. The proper antagonist that we see in movies, thugs जो होते हैं, वो था वो. But धीरे धीरे we get to know that Frenchie has had a lot to him as a character other than these things. ठीक है? तो नहीं पता है क्या, MM में मतलब उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही थी, लाइक तो समझ रहा है, जैसे कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, और कुछ लोग throughout the time they grow into something. हाँ. Yes. तो MM हमेशा से वही था, एक बैलेंस आदमी, ठीक है? ऑब्वियसली उसने बाद में जाके बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो था वही बैलेंस्ड. और जो ये था क्या, वो छोटा कौन था यार? फ्रेंची, हाँ. वो he grew throughout the time, like समझ रहे हैं? Kimiko, oh sorry, fuck. छोड़ दे. हाँ, तो exactly, तो MM I think is a perfect definition of how a human being should be, not just a man or a woman. I think how a human being should be, because he has a soft side to himself, he has a hard side to himself, and he knows at what moments which side should he bring out, right? And when are the hard decisions to be the ones to be taken. So I think MM is a pretty balanced guy, and he also had love for his family and everything. He had a purpose in his life. It's like a good combination of everything. Yes. So, I think what the show also showed through MM was that when a man has a family to take care of, the level of sanity that he has in situations is usually higher than the people who have nothing to lose, like Billy or Huey or Frenchie. That's right. Yep. Frenchie, that's if you see, is more ruthless in season 1 than in season 2, because in season 2 he has Kimiko to take care of, you know. In the whole season. Season 1 mein towards the end he has Kimiko, but season 2 mein proper we see that instead of going for the tougher ways, he says Kimiko stay, you don't have to kill. He explains Kimiko that season 2 में we get to know कि season 1 start होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था. Exactly, yeah. He had to face a trauma, जिसके बाद he had to close himself down, जिस वजह से he turned into an asshole. He turned into someone who was not very open. तो obviously वो थोड़ा सा like गलत रास्ते पे जा रहा है, तो एकदम ही savage type पे चला जाता है. तो समझ रहे? तो kindness वाला part नहीं आता. लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको Kimiko मिलती है, he turns into this kind personality, and he knows what is wrong, what is right, and he tries to find out the answers. तो मुझे ये वाली चीज़ अच्छी लगी कि जिस तरह से उन्होंने पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेवलप किया है ना. द बॉयज इज नॉट अबाउट द स्टोरी, लाइक स्टोरी तो फक ऑल है, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, नो ऑफेंस टू बॉयज, लेकिन मेरे को स्टोरी कुछ खास नहीं लगी. ठीक है, कहीं पे भी माइंड फक टाइप नहीं हुआ, जबकि हाँ उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन माइंड फक टाइप नहीं हुआ. बट द सीन्स, डायरेक्शन एंड दैट कैरेक्टर development, that was amazing. That's what I said. Matlab, characters were outstanding. There was something that stood out from the mainstream shows that we see. Story was pretty much mainstream. Like there is a villainous organization, there are people fighting against them, and the villainous organization is obviously overpowering the good people, right? So that was pretty much mainstream agar big picture dekhe to. But the intricacies, the detailing was so well that we saw that the story made sense. It wasn't great, but it made sense. Yep. It was like ये हो सकता है. हाँ, like, exactly. If superheroes existed, ये हो सकता है. जैसे Brightburn में it was extremely dangerous. Yes, like, exactly my point. Brightburn में जो था Brightburn बच्चा और Homelander, they're like
होमलैंडर को आप बच्चा कर दोगे जब वो अभी सीख ही रहा है पावर्स के बारे में, हाँ एंड ही नोज कि वो कुछ भी कर सकता है। तो एग्जैक्टली सोच, ब्राइटबर्न जो कर रहा था वो यही होमलैंडर है। आई थिंक बहुत जल्दी ब्राइटबर्न में एक ही चीज़ की कि उसे बहुत जल्दी वो मैच्योरिटी दे दी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक उसको वो रियलाइजेशन ऑफ पावर दे दिया। होमलैंडर हाँ जब तक ही वॉजेंट एन एडल्ट, जब तक ही न्यू कि नोबडी कंट्रोल्स हिम, ठीक है, वो रियलाइजेशन आने में उसको टाइम लगा। दैट इज व्हाट अस ह्यूमन बीइंग्स आर, राइट। हमें अपने एज के साथ साथ पोटेंशियल पता चलता है कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, यू नो, सब कुछ एक बार में नहीं पता चलता। तो आई थिंक एज यू सेड कि होमलैंडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमें बताता है कि हाँ टाइम लगता है पोटेंशियल जानने में, लेकिन जब एक पोटेंशियल जान सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक होमलैंडर वो एक नेगेटिव सेंस में बताता है एक्चुअली। हाँ, इनफैक्ट आप अगर होमलैंडर हो हाँ तो आप कुछ भी कर कर सकते हो, लाइक सकते हो, दैट्स अ एग्जैक्टली। बिट टू मच। लेकिन पता है क्या, होमलैंडर क्यों मतलब उसका चाइल्डहुड वैसा क्यों नहीं हो पाया जैसे ब्राइटबर्न का था? क्योंकि ब्राइटबर्न वाज नॉट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ही वाज नॉट। होमलैंडर तो एक फैसिलिटी में में बंद था, था। यस। एग्जैक्टली, तो फिर ही वाज अंडर कंट्रोल। ही हैड टू नहीं स्टे तो इन अ अगर लॉट ऑफ डिसिप्लिन। यस यस, क्योंकि उसको फोर्स किया जाता था वैसे। एग्जैक्टली, ब्राइटबर्न वाज नॉट इन डिसिप्लिन और एनीथिंग, बिकॉज उसके आसपास है क्या, मैक्स टू फैमिली है मैक्स सबसे सिर्फ। डेंजरस चीज उसका बाप हो सकता है, और बाप भी वी नो जब क्या हुआ बुलेट उसका। प्रूफ हो तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, बाप भी गोली थोड़ी मारेगा बच्चे को। नेवर माइंड। तो यही कि रियलाइजेशन ऑफ पावर इज लाइक यू कांट गिव इट अ टाइमलाइन, मतलब वो कभी भी आ सकता है, समझ रहा है? लाइक एक छोटे से बच्चे को भी उतना कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है कि वो दुनिया उखाड़ लेगा, और एक बड़े से बड़े 60 साल के आदमी को भी आप वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते कभी कभी कि वो उस एज पे भी जाके कुछ कर सकता है, जैसे KFC ने कुछ किया, ठीक है, KFC जैसे बना 60 साल की उम्र पे। तो इट्स लाइक रियलाइजेशन ऑफ पावर इज वेरी, लाइक दैट टाइमलाइन इज वेरी सब्जेक्टिव। बट या होमलैंडर में ये दिखा कि रियलाइजेशन ऑफ पावर, या बट ऑल्सो वो चीज टुवर्ड्स द एंड। हाँ मतलब आई फील कि यू नो द मेन डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड एनी अदर सुपर हीरो स्टफ दैट वी हैव सीन इज, जब भी किसी सुपर हीरो को यू नो डार्क टर्न होते हुए दिखाता है, लाइक व्हेनेवर दे सी शो अ सुपर हीरो टर्निंग इनटू एन एंटागनिस्ट, इट्स ऑलवेज विद अ सेंस ऑफ ग्रैंडियर, राइट? We see, you know, the whole environment around him changing, his whole attitude changing, मतलब बहुत कुछ बदलता है, right? And then we see कि oh shit, Spider-Man 3 में Tobey Maguire, exactly, we are like oh shit, ये बंदा negative, like he's going towards the negative side, you know, but in fact even Star Wars, light side and dark side, you know, there's a black and white concept there too, but yeah Homelander का the best part about Homelander is we don't see that grandeur when we realize that he is an antagonist. We just get to know that yeah dude, अगर हमारे पास इस लेवल का पावर होता तो कुछ हद तक तो ऐसी चीजें हम करते ही करते यार, चाहे आप कितने भी दूध के धुले हो, you know, you would always try to test the extent of your maximum power, right? That's what he tries to do जब भी whenever someone comes in front of him and he wants to be ruthless, right? You see sometimes he thinks कि अगर मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता तो मैं अभी ये कर देता, लाइक व्हेन ही गोज टू दैट प्रोटेस्ट, we see that he lasers 1,000 people in front of him, and then we see he doesn't do anything, right? I'm like, if a person is frustrated by a mob this way and he has the power to, you know, kill all of them then and there, he would actually do it, you know. That's what they wanted to show us. So he would have done it. Yes, terrorists ये सब तो करते हैं यार, तो that sense of so that sense of freedom that Homelander wanted, you know, to experience, that was very natural. As a human being, it was very natural, right? Yeah. So वो चीज़ Homelander के बारे में सही दिखाई है कि you don't need grand, you know, ceremony to show that a hero has turned into an antagonist. He can do that anytime. If he holds the power, he can do that anytime, because everybody has a dark side to them. Everybody has their gray areas, right? Where they can that exists at the same time, like black and white exists at the same time. Exactly. Yeah. Like कभी भी तेरा बुरा साइड बाहर आ सकता है, कभी भी अच्छा साइड बाहर आ सकता है. It's in your hands कि आप किस चीज को इफेक्ट होने दे रहे हो अपने आसपास. वही तो वो चीज़ आई थिंक सही दिखाई है इसमें कि
काफी कि वो कभी भी बाहर आ सकता है, लाइक वो अच्छा काम भी कर सकता है जैसे उसने अपने बेटे के लिए किया, हाँ लाइक ही वाज वेरी केयरिंग एंड लविंग एंड एवरीथिंग, यस, बट एट द सेम टाइम बाहरी दुनिया से उसको मतलब नहीं थी। एग्जैक्टली, और वो बुद्धू भी था कि मतलब उसको लगा कि मेरा बेटा तो पावरफुल होना चाहिए, ऑफ कोर्स। लाइक टिपिकल इंडियन पेरेंट्स। ओह माय गॉड, ज्यादा हो गया। तो आई थिंक मेरा होमलैंडर पिता में भी वो इंजीनियर जो होना ह्यूमन चाहिए। टेंडेंसी दिखाई है ना, वो बहुत सही चीज़ दिखाई है इन्होंने कि जब भी तुम्हारे पास इतना पावर होता है और तुम उसका पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, तो हाँ एक हद तक फ्रस्ट्रेशन होगी तुम्हें कि why am I being controlled by these people when I have so much power, right? And Brightburn में वही chains उस पे नहीं थे, so that was the difference between the guy Brightburn and Homelander. एग्जैक्टली, क्योंकि उसने अभी तक सोशल नॉर्म्स नहीं सीखे थे, ही वाज एन एलियन, Yep. और वो रहा अभी फार्म हाउस में था, लाइक फार्म हाउस क्या, फार्म पे, समझ रहा है, लाइक ही हैड नो अदर ह्यूमन अराउंड। सो Let's talk about Stormfront. bro, that lady, fucking hate that. क्या ही बोलूं मैं, She was a proper Nazi bitch, right? प्रॉपर विलन यार। लाइक हंटर्स देखा होगा ना, अगर तेरे हाँ, मैंने फैंस देखा ने है, या हाँ। तेरे व्यूअर्स ने हाँ, अगर हंटर्स देखा है ना ब्रो, yes. बस उसको समझ में आ जाएगा क्या है ये, क्या Next चीज week, है। I think next episode हमें Hunters के बारे में बनाना चाहिए. कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। yep, Yes. yep. तो हाँ, तो Stormfront की अगर बात करें, the show starts off with Stormfront coming in as a new member in the Seven, as a replacement for Deep. ठीक है? Yeah. And soon we realize that okay, Stormfront isn't exactly a teenager, a 20s girl, like the way they showed her in, towards the starting. Instagram पे, Exactly, live, social media savvy, tech savvy, and all that stuff. वो सब सिर्फ she was trying to stay up to date with the timeline. Right, right. Because she was born in 1920s, I think, somewhere around that point. And we get to know that she was the first ever human being जिसपे कि वॉट ने ट्राई किया था द सीरम। उसका पति था, वॉट ही उसका पति था। द कॉम्पाउंड वी, राइट? कॉम्पाउंड वाइट, या ऑफ कोर्स। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वॉट उसका पति था, ऑफ कोर्स हस्बैंड था, एंड शी वॉज द फर्स्ट वन जिस पर कि ये यूज हुआ था, एंड दैट्स वाई वी गेट टू नो कि शी इज सो स्ट्रॉन्ग, राइट? बिकॉज she adapted to Compound V so well कि she came out with such a unique power and such strong abilities. But of course, then we get to know कि she's also Nazi. And that character that smooth character development that we see, we think कि हाँ वो what के against है, तो हो सकता है कि ये एक बहुत अच्छी addition है to the show. Yeah. Maybe we get to see her doing something against what. But then we understand that she's against what just because they're trying to control all superheroes and she's one of them. And being a Nazi, she just wants the superhero race, the white people, to become all superheroes and them to triumph, because she thinks people of other colors are shitty, crappy. I don't know. Boys is so fucked up if you see it through the American eye. समझ रहे तू क्या अमेरिका का क्या है रिव्यूज पे, and it's so fucked up right now कि she does not respect all the races and everything, and she's, oh my god, she was dark. She was the darkest in all of them. Yes, that's all true. the characters. Homelander से भी ज्यादा। Homelander तो बेवकूफ था। Yes, Homelander को अगर दिमाग दे दो तो Stormfront बन जाए, sort of. बस वही। तो yeah, I think Stormfront was, I agree with you, Stormfront was the darkest character to the show, right? Deep was the dumbest, dumber than Homelander. Deep, हाँ, sorry, मैं A-Train से confuse हो गया। Fuck. A-Train का I think एक disadvantage जो season 2 का था कि A-Train was a great character in season 1. He had some good points, he had some good scenes in season 1. गायब हो गया यार वो। हाँ, season 2 में गायब हो गया। I think उससे focus थोड़ा बहुत हट गया, because season 1 में if you see Compound V का भी उसी के ऊपर से focus डाल के आया, ठीक है? उसकी गर्लफ्रेंड लेती थी and all.
एंड रेस टू कौन जाए हमारी भी हो गई कंटिन्यू ना, करेगा हार्ट 7 में. हार्ट हाँ, प्रॉब्लम भी तो हो गई उसको, सो आई थिंक इसलिए फोकस उसको इसलिए हटा निकाल बिकॉज हाँ, फोकस इसलिए हटा बिकॉज सीजन 1 में काफ़ी फोकस था बंदे पे, तो 2 में दे वर लाइक कि चलो थोड़े और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं. राइट. अगर इन्होंने इतने जल्दी ये सब चीजें इन्होंने लाइक रश नहीं किया होता ना एंड, तो मुझे लग रहा है इनको बीच में लाइक ए ट्रेन का जो एक बार रिप्लेसमेंट भी आने वाला था, एक और फास्ट रनर था ना, यस, वो आ गया था एक्चुअली, आई थिंक ऑलमोस्ट आ गया था. शायद आया था वो एक बीच टाइम में, के लिए, लेकिन हाँ, उसको भी शायद नहीं ऐड उसको किया उतना है ये शायद. नहीं किया इन्होंने, हाँ वही, साइड इन कैरेक्टर दोनों था के सॉर्ट बीच ऑफ. आना चाहिए था यार थोड़ा सा लाइक, समझ रहा है. और एक चीज में आई एम डिसअपॉइंटेड कि ब्लैक नोयर का कुछ नहीं दिखाया ना, ब्रो पता है सिर्फ आलमंड जॉय खाते हुए दिखाया है. क्या बात है ये. कॉमिक्स में ब्लैक नोयर का बहुत ही बढ़िया रोल है, ठीक है. आई वोंट स्पॉइल इट फॉर द फैंस बिकॉज दे माइट डू दैट आगे जाके शो में, बट Right. Black Noir is a very good character in the comics, and you'll get to know that if they go that way, it'll be like super amazing if they go that way, you know. Why will they go that way? Like अब तो ending नहीं, तुझे नहीं लगता? नहीं ब्रो, सीजन 3 आने वाला है, पक्का है. होमलैंडर जिंदा है, ठीक है. Of course. So they can go that way even now, you know. And also if you can see the similarity, I'll tell you. Last में the Congress, जो बंदी कांग्रेस वुमेन बन जाती है, who splashes heads all over the place. Oh bro. I don't remember the name, but yeah. Vic, yes. So Vic becomes a congresswoman, right? So they're going towards the White House slowly, right? They're moving towards the White House slowly. So I want that scene to happen, really happen, if they want to end the show ever. Because I think this show can go on forever. If this, character development continues, they can actually go up to 5-6 good seasons, you know. हाँ. मुझे नहीं लगता है. पता है क्या, ये कॉन्सेप्ट जो है ना सुपर हीरो और सुपर विलन्स का, ये जो फाइट वाला कॉन्सेप्ट दिखाया इन्होंने, अगर दे ऐड मोर कैरेक्टर्स टू इट, तो शायद लाइक मुझे लगता है ब्लैक नोयर को जस्टिस नहीं मिली अभी तक, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से. ब्लैक नोयर को ए ट्रेन को लाइक उसका एक क्लोजर होना चाहिए था, तो मतलब जो बाद में हो सकता है. इसका मेव, क्या नाम है यार, मेव भी, और द मेन गर्ल यार, स्टारलाइट, जो गर्ल स्टारलाइट, उसका भी अभी वो क्लोजर जैसा नहीं है कहीं. आई थिंक इन 4 कैरेक्टर्स को नहीं मिला अभी क्लोजर. मुझे मेव और स्टारलाइट आई थिंक फिर भी काफी हद तक इन्होंने यूटिलाइज किया 2 सीजन्स में. हाँ काफी हद वो तक. जो विमेन पावर वाला लास्ट में दिखाया ना, देख पता है क्या, लाइक द बॉयज इज सो डिफरेंट. जैसे सोसाइटी इज बीइंग पोर्ट्रेड अबाउट थिंग्स, जैसे कई बार विमेन पावर का दिखाते हैं, जैसे मार्वल में दिखाया था विमेन पावर का, दे वर अगेंस्ट अ मैन, राइट? और इसमें दे वर अगेंस्ट अ फकिंग वुमन, एंड आई वाज लाइक ब्रो, या नाउ दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. लाइक क्या वुमेन खराब नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? और वुमेन उतनी अच्छी भी हो सकती है. तो I think feminism and feminazism. Yes, quite literally भी हो गया feminazi. Yeah, exactly. तो really like that point कि इन्होंने एक women को एक womanazi को मारते हुए दिखाया. Exactly. तो वो सीन तो epic था. Yep. And I think Billy Butcher turns the darkest when he cuts a deal with the president of what in the hotel room, Edgar, yes, in the hotel, and he is trying to separate Rebecca from her kid because he's too selfish, and I literally hated Billy for that. Like I was like, what the hell, dude? I used to look up to you, ठीक है? I wanted to be as sassy as you are, ठीक है? And this is what you do. How the hell can you do this? इतना unfair लग रहा था ना वो moment. Exactly. भाई हम लोग में ऐसे खंड करते थे एकदम ऐसे, तो खुश होके कि ओ भाई ये बंदा आया, एंट्री हुई इसकी. Exactly. और सीजन 2 में लाइक I'll say सीजन 1 से सीजन 2 सबसे ज्यादा टचिंग मोमेंट वही था जहाँ पे हमने बिली बुचर को एक डार्क साइड लेते हुए देखा. I was like, bro, मजा ही आ गया था. लेकिन एंड उसके बाद वी सी
कि Billy actually does the right thing. Billy doesn't separate Rebecca with the kid because he sees that love in Rebecca for the kid that he has for Rebecca, you know. The same love वो reciprocate होते हुए देखता है उन दोनों के बीच. And then he's like, okay, I can't be as selfish as I was being because this isn't the right thing to do. And she's my wife. Like मैं कब तक ही झूठ बोल पाऊंगा इससे, you know, नजरें नहीं मिला पाऊंगा, and all those things. तो उसके बाद लास्ट में जाके बिकॉज ऑफ द किड रायन, यू नो, रिबेका डाइज एंड I cried. That was such an emotional scene. That was such an amazing scene. मैं बहुत रोया, ठीक है. एंड उसके बाद पता है यार, मेरे को ये बात बहुत खराब लगी कि एक इंसान को तो वो दे दो, लाइक तो समझ रहा है. मुझे अभी तक ह्यूई के बारे में वो फर्स्ट सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट 10 मिनट्स वाला दुख हो रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड लाइक रॉबिन वाज स्प्लिट इनटू पीसेस. तो समझ रहा है, चॉप्ड इनटू पीसेस, नहीं चर्न्ड इनटू पीसेस. यस, दैट वाज सो बैड. और इन्होंने लास्ट में भी वही एकदम दुख में खत्म कर दिया. लाइक ब्रो यार, बट आई थिंक दैट्स द harsh reality. yeah, exactly, that's the reality. You don't always have a happy ending. True. Sometimes it is very sad, and you know, you need to find the light from within when you are about to do the worst thing ever. Billy literally went to kill Ryan, right? As a kid, like Ryan was the kid. He was definitely blaming Ryan for you know, killing Rebecca because Rebecca was saying it isn't his fault. Bring him up the right way. But then Ryan is like, I'm sorry, and Billy is like, I'm gonna kill you, you kid. हाँ, उसने वो उठा लिया था एक. I think at that point when Homelander lands there, bathed in blood, okay, and he has no signs of regret after killing so many people. And he sees Ryan saying, I'm sorry, I didn't mean to do it, I'm sorry. That's where we see the difference between Homelander and Ryan, who have the same powers, right? Right. And oh shit, हाँ यार, ये notice नहीं किया मैंने. Exactly. One had regret and one did not. Exactly. They both had the same powers. Yes, and they both did the same thing. They both killed people, right? Yeah. So Ryan meant to kill the Nazi, you know, villain, Stormfront, but Rebecca. जो मजा आया ना, वो जैसे मरी है. I know. Bro, उसका दिमाग खराब हो गया था. वो जर्मन में बोल रही थी यार. वो सिर्फ उसको बस वो उतना ही आता, you know, हिटलर के जो वर्सेस थे जो वो बोलता था. Exactly. वो ऐसे बड़े she's torn and everything. Burnt from head to toe. मजा ही आ गया. Literally burnt from head to toe. Ever, yes. Amazing. So the point is, yeah, so we see that goodness in Ryan that we don't see in Homelander. And then Billy, you know, goes on to see that too. That Ryan chooses to go towards Billy rather than Homelander. And he understands that we have a chance with Ryan. He doesn't need to grow up to be that guy Homelander is. And if he grows up the right way, he can be a huge weapon against Homelander. तू सोच सुपरमैन में कन्वर्ट हो गया तो. Exactly. That's where we see the Superman factor in The Boys. Yes. अब सुपरमैन आएगा. Exactly. So shit. We still don't know कि Ryan को किस पाथ पे वो लोग ले जाएंगे and all. फैसिलिटी किस पाथ पे ले जाएगी? We don't know. फैसिलिटी मुझे लगता है वो फैसिलिटी में नहीं रखेंगे इस बार. अरे मैलरी लेके जाती है ना लास्ट में. मतलब क्या है उसका? Like, is that police? What is it? CIA, basically. CIA. Yeah. But I think they are gonna hide him from what, right? And they also have the support of Vic, who is in White House. We don't know what Vic is yet. She's a villain, she's a hero. We have no clue yet. All right. Very complicated character. चर्च वाले को मारा उसने. So we don't know. Dude, चर्च वाले को मारा, but चर्च वाले भी, you know, what के against थे, but they weren't good guys, you know? They were just trying to reinstate people into what so that
church can still go on. That's what the church was. Yeah. And Vic just They were like spikes in there. yeah, Vic just sabotages the church. So I don't know yet कि Vic क्या है, अच्छी है, बुरी है, we don't know yet. And there is also Vic एक वही थी ना जो जब ये लोग उस फैसिलिटी में जाते हैं और जो आग वाला बंदा कौन है यार, हाँ जो भी फायर समथिंग, आई डोंट नो, जो कुछ नाम था उसका, फायरमैन फायरमैन, टॉर्च कुछ नाम होता है ना, ह्यूमन टॉर्च तो नहीं होगा ब्रो, नहीं। ह्यूमन टॉर्च तो फैंटास्टिक फोर में था। तो जो भी है, तो वहां पे जाते हैं ना जब लैम्प लाइटर, ओ ये ब्रो, तो जब वहां जाते हैं और फैसिलिटी में ये लोग लड़ रहे होते हैं, तो उसमें नहीं एक बीच में एक गंजी आती है। I don't think Vic is the same lady, but Not. no, because you know Vic doesn't even move her hands. ठीक है, she doesn't even clench them when she kills the true. guy in the church. was Her different, eyes yeah. turn white, and the girl Right. who escaped the asylum, asylum, she was someone who had telekinesis. Like she could control people, she could control objects, right? So she had telekinesis proper for both biological and abiogical things. So उसमें सुन हाँ. उसमें एक म्यूटेंट था जिसका Love Sausage नाम है उसका bro. क्या? Yes, the character's name is Love Sausage, and he might have a greater role in season 3. Oh my god जी यार, Yes. क्या क्रिंज था, मैंने देखा ये क्या है, look what the fuck, why would they do that? Oh भाई, The proper boys is 18 like plus show है. touching limits bro. Exactly. The boys is touching limits like हाँ. everywhere, Touching नहीं, crossing. crossing even, yeah. तो Crossing. बट काफ़ी अच्छा शो है, मतलब आई थिंक बहुत ही कैरेक्टर ज़्यादा। डेवलपमेंट्स, taking hard decisions at the right time, and you don't always take the right decisions, just like Billy, when he went to cut a deal Yeah. with Edgar, he didn't take the right decision. He could have just said, let Rebecca and Ryan go and to a place where they're safe, and I can meet Rebecca at times, I want to know about the Exactly. hideout and I want to meet her. थोड़ा सा easy हो सकता था वो। But he just chose to do the wrong thing, which was very selfish. उसके लिए वो रॉन्ग नहीं था ना ब्रो। अब तू ये सोच, जिसने सिर्फ ये देखा हो कि जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं, दे सप्रेस द वीक अराउंड देम, तो समझ रहा है? लाइक ही ऑलवेज फेल्ट बैड अबाउट हिज फादर being such an asshole to both of them, but at the same time to his younger brother Lenny, समझ रहा है? लेनी को इतना कुछ फेस करना पड़ा, और समवेयर ह्यूई में वो लेनी को ही देखता था। लाइक हमें ये चीज बाद में पता चली इसकी माँ से, बिल की माँ से, बिली की माँ से, ठीक है? तो इट्स लाइक he always saw the stronger ones dominating the weaker ones, ठीक है? तो उसके हिसाब से it was kindness। तो समझ रहा है कि जड़ को, लाइक प्रॉब्लम की जड़ को ही उखाड़ दो ना। अगर प्रॉब्लम है और बच्चा बड़ा होके सुपर हीरो बनने वाला है, होमलैंडर जैसा वो भी, क्योंकि उसका बेटा है, तो जड़ में मार दो, लाइक जस्ट सप्रेस दैट होल फैक्टर, तो फिर वो बड़े होके वैसा बनेगा ही नहीं। लेकिन चीजें ऐसे काम नहीं करती, जितना आप सप्रेस करते हो वो चीज उसके उल्टे ग्रो करती है। होमलैंडर को सप्रेस ही तो किया गया था। That's what rebellion is, right? एग्जैक्टली, रेबेलियन की भावना कहाँ से आती? इसी से जब कोई रिपीटेडली तुम्हें प्रेशराइज करता है कि तुम यही करो, दिस इज द ओनली राइट थिंग, you don't have the you don't have the choice, you don't have the freedom of judgment, कि what is the right thing to do, तभी तुम्हें लगता है कि let's just go the opposite way because this is what, ऐसे भी मानने वाले तो है नहीं, this is too mainstream, ये लगने लगता है तुम्हें, this is too mainstream, हाँ, तो let's just go the opposite way। तो I think that's what एक rebellion तरह is। से जो बच्चों को वही बच्चों को, जैसे बचपन में, सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको पेरेंट्स से या फिर अपने बड़ों से इतना वैलिडेशन नहीं मिला होता है उनकी कई चीज़ों में, जिस वजह से दे जस्ट टर्न इनटू दिस रिबेलियस काइंड, तो समझ रहा है? एंड वो एक तरह से ना वो नेगेटिव
इम्प्रेशन डाल देता है उनके दिमाग में, और अपने ही पेरेंट्स के बारे में और अदर पीपल के बारे में भी, जो भी उनको वैलिडेट नहीं करेंगे, दे रॉन्ग टू देम। ऐसा नहीं है, दुनिया आपके पीछे नहीं भाग रही है, यू नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज नहीं सोचते ना लोग, क्योंकि बचपन से उनको सिखाया है सप्रेशन के। एग्जैक्टली ये चीज बहुत अच्छी दिखाई, लाइक इट्स अ वेरी डीप मैसेज जो इन्होंने दिखाया है द बॉयज में। बट यू नो एक्चुअली यू नीड अ वेरी, हाँ मतलब यू नीड अ वेरी कीन आई टू रियलाइज ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज कैरेक्टर्स इतने ओवरवेलमिंग है इसमें कि ये सारी चीजें पॉइंट आउट करके देखना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली रिलेटेड टू द सोसाइटी, है ना? right, but at the same time it's very easy because they have actually paid attention to these things, they have हाँ. लेकिन लोग उसके लिए देखते नहीं ना, लोग हाइप के लिए देखते हैं, हाइप के लिए, ओ लड़ाई होगी ब्रो, लड़ाई होगी, हाइप के लिए देखते हैं, प्रॉपर एक्शन सीक्वेंसेस, कॉस्ट्यूम्स के लिए देखते हैं, एग्जैक्टली कौन सा बंदा कितना खून खराबा कर रहा है। सुन पता है, और सबकॉन्शियसली ये शो लोगों को वेलकम करके वो चीजें दिखा भी दे रहा है जो वो दिखाना चाहता है, दैट इज जो हमने अभी मैसेजेस वाली बात करी। यस ठीक है, कैसे हम लोग कैसे अट्रैक्ट हुए थे इस शो की तरफ, गाली गलौज, वायलेंस, अलग लेवल वायलेंस, लाइक 10 मिनट में। आई थिंक गालियों की बात अगर करें, मेरे चैनल पे ऐसा अलाउड तो नहीं है, फैमिली चैनल रखना चाहता हूँ उसको, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर आप द बॉयज देखते हो, बहुत ओपन माइंडेड हो जाओगे आप, अगर आपको पसंद आना शुरू होता है, और ऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिली से हो अगर आप, तो आपकी भड़ास निकालने का एक तरीका है द बॉयज। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा। नहीं प्लीज वैसे भड़ास मत निकालना, मतलब देख के अगर तुमको भड़ास निकल जा रही है तो बात है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हें देख के भड़ास निकल जा रही है कि तुम्हें गालियाँ देने को नहीं मिल रही है किसी को, और मतलब दीवार की तरफ देख के भी तुम कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तो द बॉयज देखिए और अपना भड़ास निकालिए और खुश रहिए जिंदगी में बस। हाँ तो ये चीज़ तो है। तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड एनफ, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर। एग्जैक्टली, लाइक बाकी भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे एडगर के बारे में हम क्या ही बात करेंगे। एडगर को एक प्रॉपर बिजनेसमैन दिखाया है लास्ट में ना, एडगर का एक लाइन यू नो समराइजेस हिज होल कैरेक्टर, it's always about business, that's what he says, you know, it's stocks, it's about your stocks values going up and down, you do everything for business। जानते भी थे ब्रो, और हम फर्स्ट सीजन से जानते थे कि it's all about their business, लेकिन तो समझ रहा है, कोई जब बोल के उसको और emphasize करता है, yes या प्लस ये बंदा इतना प्यारा एक्टर है ना ब्रो, यही तो था मैंडलोरियन में विलन ब्रो, वही तो एडगर के इतने कम सीन्स हैं, बट फिर भी मुझे उस बंदे से इतना प्यार है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ फर्मनेस हिज कैरेक्टर हैज इन द शो, राइट, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है यार वो बंदा शो में भी। ही कम्स टू द टेबल and he knows that he's going to win the deal no matter what. He never shows weakness in his eyes. तो ये सोच, उसमें जैसा दिखाया है स्टॉर्म फ्रंट को या फिर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को, एक्सक्यूज मी, तो जैसा उसमें दिखाया है, तू उस दुनिया के बारे में पहले सोच, then imagine this guy Edgar, a black man, a human, दोनों लाइक उस शो के हिसाब से दोनों सप्रेस्ड साइड्स, उस शो के हिसाब से, यस ठीक है, एंड मतलब लिटरली ओन्स अ नाजी सुपर हीरो, हाँ लिटरली ओन्स अ नाजी सुपर हीरो, या fucking owns her, oh my god, amazing man, like crazy, even she respects him, तो ये सोच, like yeah, because he has her secrets। Exactly. अगर क्योंकि उसको पता है कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि शी इज अ नाजी यू नो फीमेल एंड शी इज ट्राइंग टू सप्रेस एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द वाइट क्लियर पीपल, जितने भी कलर्ड सुपर हीरोज हैं, जितने भी अलग अलग रेसेस के सुपर हीरोज हैं जो कि यू नो नाजीज के गुड़ाई में नहीं आते हैं, सब के सब एकजुट हो जाएंगे, एंड शी इज नॉट इनविंसिबल, शी नोज दैट। होमलैंडर से वो डरती है
शो में. तो और क्या. शी नोज कि देर इज अ लिमिट टू हर पावर्स, एंड इसीलिए वो पूरे टाइम इसी डर में एडगर के नीचे काम करती है. एंड दूसरी बात, होमलैंडर को अपने साइड पे करना चाहती है, इसी दो वजह से. एंड इफ यू सी, होमलैंडर इज ऑल्सो, bro. yes, It's and power of knowledge. ब्रो होमलैंडर इसी मतलब एक सीन है ऐसा जहाँ पे हम देखते हैं कि होमलैंडर इतना बुरा नहीं है जितना कि स्टॉर्मफ्रंट है. Right. व्हेन शी सेज कि अपने अंदर का हेटरेड निकालो, रायन को बोलती है कि अपने अंदर का हेटरेड निकालो, तब जाके तुम्हारे पावर्स एक्टिवेट होंगे. यू नो, तुम किसी पे गुस्सा आ रहा है, तुम ऐसे करो. और बोलती है कि हमें जीतना है, बाकी सब फालतू लोग हैं, ठीक है, वी आर दी, बाकी सब फुद्दू हैं, उन पे गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, तब तुम्हारे पावर्स एक्टिवेट होंगे. देन होमलैंडर इज लाइक क्या, ठीक है. Exactly. I mean- He was like, oh, ये क्या कर रही है ये? एग्जैक्टली, तो मैंने देखा ही नहीं कभी. लाइक लिटरली वियर्ड करके उसके दिमाग में आता है. उसके लिए डार्क थी वो. तो ये सोच, Exactly. उसके लिए डार्क थी, तो हम लोग के लिए क्या होगा? वही. Fucking hell. बहुत ही So- like बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल सीन्स दिखाए हैं उसमें. तो समझ रहा है, बहुत. लाइक एक इसकी फैंटेसी दूध की तरफ, bro. Oh my Yes. God. It's fucked up. It's messed up, bro. लेकिन जो है वो है. Exactly. So I think that is what is The Boys about, you know. There's a lot of gray in हमने this स्टोरी world. को ज्यादा टच किया है, तो दैट्स गुड. क्या? तो अभी अगर किसी ने नहीं देख, हमने स्टोरी को टच नहीं किया है ना. हाँ, अभी. exactly. तो किसी को देखना है तो अगर नहीं देखा है तो ब्रो देख लो, और नहीं देखा है तो लानत This, है. yes, अगर देखना है तो जल्दी देखो, नहीं देखे हो तो. Yeah. और अगर देखना ही नहीं था तब तो पक्का लाना था तुम पे, क्योंकि इट्स अ ग्रेट शो. But jokes apart, it's a great show. It teaches you a lot about life, and if you see it from those, like from that keen eye, if you have the eye of a person who, you know, relates it to real life situations, it's a great show for you, because you'll get to know a lot about character development. You'll get to know a lot about what are good and bad decisions, and how is good a very subjective word, you know. So It is. The Never Boys- overvalue anything. Yep. So The Boys is all about your judgment at a particular point of time. That's the show about. Yeah. That's Yeah. what I'll summarize it with, because you know, The Boys के जितने भी लड़के हैं, like लड़के लड़कियां हैं, किमीको है, फ्रेंची है, MM है, ह्यूई है, बिली है, हर एक बंदे को डिफाइन किया है उनके चॉइसेस से कि वो क्या करने का सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में, राइट. जबकि मतलब Choices in past life. हाँ, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, डूम्सडे आता है अगर तुम्हारे ऊपर और तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही है, या तो तुम्हें उसको मारना है या फिर तुम्हें उसको बख्श देना है, तो तुम्हें क्या करना है ना. एंड उस सिचुएशन के हिसाब से मारना या बख्श देना कौन सा सही है, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ द शो, एंड व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, हाउ डज इट वर्क इन द शो. ये सब तुम्हें पता चलता है. Right. ग्रेट शो. देखना जरूरी है guys. यस. चलो, तो इट वॉज फन टॉकिंग टू यू. प्रॉपर 45 मिनट्स का सेशन रहा है. बॉयज के बारे में डिस्कशन अच्छा जरूरी think- था एक्चुअली. हाँ, अच्छे शोज के बारे में डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है, नॉट जस्ट द बॉयज. राइट. तो हंटर्स. मिर्ज़ापुर. ऑफ कोर्स. तो उसको तो छोड़. आई थिंक उसके बारे में भी करते हैं. मिर्ज़ापुर का हाइप बहुत है अभी, 23rd को आ रहा है. सो आई विल से बिफोर 23rd, लेट्स जस्ट गिव आवर पीपल अ लिटिल इनसाइट ऑन सीजन 1 एंड टेल देम कि क्या कैरेक्टर, विच कैरेक्टर स्टूड फॉर व्हाट फॉर अस, राइट. एंड हमने क्या क्या लेसन्स लिए कौन से कैरेक्टर से, या हमें क्या क्या दिखा उनमें, राइट. सो लेट्स डू एन एनालिसिस एंड stay tuned for more, guys. Thank you for tuning into the channel. Like, share, subscribe, of course, and stay tuned. I have a lot planned for you guys. Love you all. Bye. Bro.